Start our today's topic. So our today's topic is the continuation of the last session. Okay, qualifications of an ideal disciple. तो हम लोगों ने 50% टॉपिक लास्ट सेशन में कवर किया था साइंटिफिक वे में स्टेप बाय स्टेप इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट to surrender to a spiritual master and what are the qualifications. So today I will be discussing 6 important qualifications of an ideal disciple. Okay. So I am sharing my screen. Let me know if you are able to see my screen. Okay. So अभी आप लोग गीता का क्वेश्चंस बंद कर दीजिएगा, ठीक है? अभी सेशन सुनिए अच्छे से. When time will come, if I have time today at end, I will ask. Okay. Otherwise, I will ask in next session. ठीक है? Or yes, we are already running late little bit. So one of you can join from mobile phone so that you can see the PPT. Okay. Join करके उसको फोन में डाल दो तो it will not resonate the sound. एको नहीं होगा. Okay. So आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं. So first qualification of an ideal disciple here is humble surrender. Okay. So humble surrender. So though there were two small children. Okay, those two small children and then children. Is it clear now? So there were two small children. So I was saying this story, and one of their name was Amar and one of their name was Santosh. Okay. So ये दोनों जो है ये सरस्वत ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे कर्नाटका में. ओके. तो कर्नाटक में सरस्वत ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे and they shifted to Bengal and then at that time Bengal was ruled by Nawab Hussain Shah. I think you know this story, right? आपने कैम्प में सुना था. तो नवाब हुसैन साहब बंगाल को रूल करते थे and then someone told नवाब हुसैन साहब कि ये दो जो बच्चे हैं they are very intelligent. Okay. And Nawab Hussain was also at that time in search of some intelligent people who can help him in administrating. तो उन्होंने उनको बुलाया वहाँ पर और उनको बोला कि आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा. But they were reluctant to work for the Hussain Shah. कि उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे लिए काम नहीं करोगे then मैं अत्याचार करूँगा हिंदुओं के ऊपर. So just for that reason कि दूसरों के ऊपर अत्याचार ना हो उसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया काम करने के लिए. And then they were because of the intelligence and very well behavior और उनका vast range of knowledge. So one of them became a what you say prime minister and one of them became finance minister. So something like that they both got the post. So Dabir Khas and Shakar Malik उनको नाम दिया गया था. आपने सचिन सुना था ये वाला स्टोरी पहले? तो उनको दबीर खास और शाकर मलिक का नाम दिया गया by Hussain Shah and they were told to grow beard and keep the Muslim cap and all those things. पर जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तभी they were completely different. Okay. जब वो मिनिस्टर्स थे they were like pandits, they knew many languages, Arabic, Farsi and Hindi and Urdu and many languages they knew at that time. वो सब भाषा पता था. They were highly scholarly people and doing very well administration and उनको बहुत धन दिया जाता था, like lot of wealth. एक बोट भर के सोने के सिक्के जितने रहेंगे उतना उनका हाँ. They have collected that much wealth, not money, gold coins समझिए. उतना उनके पास पैसा था. But they did not use their money for self gratification. खाना पीना सोना all those things के लिए यूज नहीं किया. तो जब वो मिले चैतन्य महाप्रभु से तभी उन्होंने सिंपल एकदम हम्बल बन गए
स्पेशली सनातन गोस्वामी, तो एकदम हम्बल बन गए. एंड देन ही आस्क्ड द बेसिक क्वेश्चन कि हु एम आई एंड मैं कौन हूँ, व्हाई एम आई सफरिंग द थ्री फोल्ड मिजरीज ऑफ लाइफ, क्यों मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, भगवान कौन है, ऑल दोस थिंग्स. आई एम मैं तो एक शूद्रा हूँ, मैं तो मुस्लिम लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, पर लोग मुझे पंडित बुलाते हैं. सो दिस वाज ह्यूमिलिटी, वेरी मीक एंड हम्बल. ओके, एंड दिस ब्रोक द हार्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु. इतना इतना हम्बल, अपने मुंह में एक स्ट्रॉ लेके वो उनके पास गए थे. देखिए मैं शीट पे शेयर कर रहा हूँ. they were very they just kind how rich they were, and then like उनके मुंह में सनातन गोस्वामी स्ट्रॉ लेके he fell at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. So this was his humility. Okay, यहाँ पर लिखा है देखिए, my associations are all abominable and I fell and I am fallen the most wretched of mankind. I was suffering in dark well of material enjoyment and I never knew actual goal of my life. मतलब वो they were actually very good devotees, but still they are saying like that out of humility. Okay, so this is what I wanted to say about humble surrender, the first qualification of an ideal disciple. Similarly in this way also हम लोगों ने हमारी जिंदगी जी है, तो अभी तक कितना साल, मे बी 20 years 25 years in our youth age we are. So उसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ किया है. We were wandering around in malls, watching movies, TV series, all those dirty things, eating all nonsense things, non-veg, ये सब करते थे. So many things we have done, wasted time in unwanted things and polluting our consciousness. So जब भी हम लोग अभी now just we have started our spiritual journey. Okay, so when we have started, we should think that of these things also, कि मैं पहले कैसे था, मैं इतना गिरा हुआ था, I was so lowly, so down. So with that humility, when we start our spiritual journey, we will get special mercy of Chaitanya Mahaprabhu. We'll attract the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, जिस प्रकार सनातन गोस्वामी ने अट्रैक्ट किया था. ठीक है, so that is a very important qualification. Take shelter of devotees and Krishna by being very very humble. So then only we can attract the mercy. So this is the first qualification I wanted to tell you. Okay. So इसमें और भी कुछ examples है, just like Arjun became humble. जब उनको कुछ समझ में, पहले बहुत कुछ बोले विद्वान के जैसे, but at last he became humble and told Krishna, please enlighten me, please help me, है ना. So what is the opposite of humility? Humility का opposite क्या है? Anyone here? वरुण प्रभु, सूरज प्रभु, सुमन प्रभु. Being proud. Okay. अच्छा. Being proud is the opposite. Okay, exact opposite. एक नीचे और एकदम एक ऊपर. Being proud, मैं बहुत ही गर्विष्ठ हूँ, मैं ये सब किया हूँ. If someone thinks that उसको पता है, वो सोचता है कि मेरे को सब कुछ पता है, इतना I've learned so many things already, इतना सब कुछ मैंने देखा है, then it is like क्या बोलते हैं, a womb of an infertile woman. When a woman is infertile, is called barren woman. Then she cannot conceive a child. Okay, she cannot become pregnant. It's like that. No matter what happens. Like अगर एक land fertile नहीं है, आप उसमें बीज बोएंगे, तो क्या उसमें से आएगा पेड़ पौधे उगेंगे? नहीं उगेंगे, right? You have to plow the field, उसको soft करना पड़ेगा soil को. Then you have to take care of soil and then you have to fertile soil में जो डालना है तभी it will grow. So this is what happens. Okay. So ये एक यहाँ पर एक example दिया गया है of the मृदंग teacher. So एक बार क्या हुआ था, ये एक लड़का, वो एक उसको मृदंग सीखना था. जैसे आप लोग कोई बजाने का मन करता है वॉइस में मृदंग, तो मृदंग सीखने के लिए गए थे टीचर के पास. तो टीचर ने उसको बोला ठीक है, तो आप क्या पहले मृदंग सीखे कहीं पर? बोला कि हाँ मैं यूट्यूब में यहाँ पर देख के थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करके सीखा हूँ. तो उसमें ठीक है, आप मुझे महीने का 200 रुपए दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से मृदंग सिखाऊंगा. ओके, हैव यू हर्ड दिस थिंग बिफोर? नो, राइट? I think in some of the sessions Mahaprabhu have told this thing. 200 रुपए दीजिए, मैं सिखाऊंगा. Okay, he was happy. Okay, then one more student came to the teacher just after that, and उसने बोला मुझे मृदंग सीखना है. तो उसने सेम क्वेश्चन पूछा कि आपने कभी पहले मृदंग सीखा है? उसने मैंने बस देखा है, टच किया उसको कैसे है क्या है, पर कभी मैंने बजाया नहीं उसको. तो बोला ठीक है, 100 रुपए दीजिए महीने का, मैं आपको मृदंग सिखाऊंगा. तो ये लड़का के पूछा
मेरे को 200 रुपए बोला, मेरे को तो आता भी है मृदंग सीखना, मैं यूट्यूब से सीखा हूँ, आप उसको 100 रुपए को तो कुछ भी नहीं आता है। तो उसने बोला कि whatever you have learned hodgepodge thing from YouTube, all the wrong beats and wrong style, all those things, I have to first make you undo those things and then I have to teach you again from scratch. But this boy is a clean slate. उसको जो भी बोलूंगा he will just grasp and he will learn it. समझ गए? So this is very important here. This is reply of the teacher. उसी प्रकार now we have come to learn spirituality, to know the real goal of life. इसके पहले हमने बहुत कुछ books पढ़ा होगा. We have read some books of Mayavadis. We have read books of different yogis. We have read some books of Karmis, Gyanis, cinema books. I was addicted to Harry Potter books when I was in my school days. So all the 7 volumes of Harry Potter book I used to read and again, all those things. But then when I came here, Sherlock Holmes, Harry Potter, all these books, novels I used to read, and many of such kind of novels and all. But then when I came in spirituality, then I came to know this basic knowledge that we are soul, we are not the body. Okay. And soul can never be cut, it cannot be burnt, and it is very small. It cannot become even wet. Okay. On Harry Potter का basic funda क्या था कि soul is cut into 7 parts and it is put in 7 different objects. That's all. It's completely waste. Then I used to read those comics of Avengers, Spider-Man, all those things in my school. All these things I was addicted to all those things. And then when I read this thing, your body cannot go out of earth itself. How they are showing all these things, going out of earth, coming in the ऐसा वैसा हो रहा है. Completely bogus. मेरा उसमें से क्या दिखा रहे हैं? Just they are fooling us. Why should I go and waste around 300 रुपए दे के पॉपकॉर्न करते 500 रुपए का बिल बना के मैं बेवकूफ बन के क्यों आऊँ? Yes or no? This is what people want to become fools, so they are fooling you and taking your money. Okay, because they don't have the knowledge. That is what is happening. So coming back to the topic. Okay, so अगर आपको प्रभुपाद जी को as your क्या बोलते हैं शिक्षा गुरु या आप प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहते हैं as आचार्य, then you have to become very humble and open minded. ठीक है, आपने जो भी पहले सीखा है just keep it aside and start fresh. जो भी आपको सीखने को मिल रहा है just take it. Okay, otherwise वो confusion. और one more thing, आपको doubts तो आएगा ही. हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया था, ये मैंने पहले से पढ़ा था. So all those things you have to ask. Okay, if you don't ask the doubts, they will become like demons in your heart and they will eat your bhakti. Okay, and they will there in your heart and then they will create some misunderstanding, misconception कि मैं तो ऐसे कहता प्रभु जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये तो गलत है. प्रभु जी हटे ऐसे बोलते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं. All these things will come and your relationship will become spoiled, and that's all that. Okay, the many cases I have seen like this. इसीलिए it is very important to be very humble, surrender and ask as many doubts as possible. जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, you have to ask जितना भी मन में. Don't say feel that अरे प्रभु जी को कैसे लगेगा मैं डाउट पूछूंगा तो ये पूछना अच्छा रहेगा कि नहीं. Let it be how much ever foolish doubt, let it be how much ever greedy, silly doubt. Just open yourself and ask it. तभी then only your path will be clear. Okay, ठीक है. So what is the first qualification? Humble surrender और आपका डाउट जो भी आपको क्लियर करना है. ठीक है. An ideal disciple of an ideal disciple. So Varun Prabhu, you are there with us, right? आप समझ ना मैं क्या बोला. This is very important point. जी प्रभु जी, आपका जो फर्स्ट था वो हम्बल सरेंडर, उसमें आप बोले कि ह्यूमिलिटी का अपोजिट प्राइड होता है. तो हम लोगों को ओपन माइंडेड होकर के माइंड को क्लियर करके सुनना चाहिए. नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं. अगर पहले से अगर हम माइंड को भरे हुए रखेंगे तो फिर कोई कुछ भी बोलेगा तो हम माइंड को फिर दोबारा एक अच्छे नॉलेज से भर नहीं सकते हैं प्रभु जी. Okay, thank you Prabhu. Hari Bol. Thanks, Prabhu. Varun Prabhu is attending his this class from his office in ICICI Bank. Okay, वो काम करते करते सुन रहे हैं. So he want to learn spirituality. Krishna consciousness very nicely. So I really appreciate his eagerness. Thank you Varun. Thank you Prabhu ji. And then the second quality of an qualification of ideal disciple is inquisitiveness. Okay, inquisitiveness means पूछना, inquiry. Okay, जैसे कि the birds they wake up early in the morning, चू 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 आवाज करते रहते हैं. All these birds or they ask where is my food, where is my place to stay, कहाँ पर मुझे खाना मिलेगा. Dogs are barking, cats, all these animals. Everybody is inquiring something, right? Politicians are inquiring. हम लोग inquire करते हैं. मैं क्रिकेट का स्कोर क्या हुआ थोड़ा पता.
Yes or no? Players को inquire करते क्या हुआ है, especially when India Pakistan match is happening. Politicians, lawyers inquire करते हैं. लोग बोलते हैं अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उसके बाद इंक्वायरी होता है, डिबेट चलता है उसके ऊपर. All these in the TV shows, हम लोग इंक्वायर करते हैं कैसे मैं करियर को अच्छे से कर पाऊँ. I want to take a good bungalow, मुझे पैसा कमाना है. All these things, कैसे प्रमोशन मिलेगा. All these things, many such mundane things we keep on inquiring. Okay. But main thing is we don't inquire the main thing of our life. So here comes the topic of Shreyas and Prayas. Okay, Shreyas and Prayas. I don't know whether you have heard these things before, these two technical spiritual terms, Shreya and Prayas. Okay. Shreyas and Prayas. You can make down some notes if possible. So there, it happened. There was a research in Stanford University. So what they did, they went to a school, and it was like a long-term research. Okay, वो school में गए, and then the person who was doing research, he gave toffee. एक toffee दिया class के हर students को, और उनको बोला I will go to other class and give toffee to them also, and I will come back. Okay. और जो लोग के हाथ में टॉफी है तभी भी, if you have not eaten the toffee, you will get second toffee. Again, अगर आप टॉफी खा लेंगे, then I will not give second toffee. So that teacher went, and again she came back. More than half of the class ate the toffee. Very few handful people, students were there who did not eat the toffee, and they got second toffee as their prize. The teacher ने बोला था. Then उन्होंने observe किया. They tolerated the urge to eat, है ना? Then उन्होंने उनको observe किया when they went into the teenage from school. तभी those students who have eaten the toffee, their nature was like rough behavior, not respecting the elders, all those things, speaking harshly, all those things automatically was nature. And those who tolerated that urge to eat to stop eating the toffee, to take second toffee, their behavior was very good, very calm, peaceful, and very controlled. So this I wanted to say you that Shreyas and Prayas. So the first batch of students in toffee खाया था, they thought about short term and enjoyment. Okay, toffee पीला खा लो बस. Okay. Another, this called as Shreyas. Sorry, it is called as I think Prayas. Yeah. And the other group, they tolerated it. They felt for the long term benefit. Long term में मुझे एक और मिलेगा. उसी प्रकार this research say also one more conclusion is that in current life, many of us we go for name, fame, money, career, growth करना है. All those things we do about this only. We think अभी मैं अगर पैसे कमाऊंगा, it will be helpful for my old age. I'll just give you one real-time example which happened here. One of my colleagues working with me, I'll not take her name. So she is like younger than me, okay? But she reached the same level which I am now, okay? At the same post which I am working in Cognizant. So when we came into the project together, she was one level down, and now she came to the same level. So I was observing that she will log in to the computer morning around 7 o'clock like that, and be working, and she'll be working till night 9 o'clock, more than 12 hours. And even if there are some, because our project is Agilent, so it is American technology healthcare company. So they work in American time, which is night for India. So if there are some client calls at that time, she'll also attend that also. Okay. All so much work and all she used to do. And consecutively what happened, we had meetings and everything, and we just had some casual conversations. So she used to say, I have at 1 o'clock, she used to say, I have not yet had my breakfast. So I take a break, I have a breakfast and come. She used to have her lunch at evening 6 o'clock. So much tight meetings, everything, all those things. This continued for almost 2 years. I'm in Agilent project for past 2 years. It's continued for almost 2 years. And then now, recently, she had maybe last week or so,
she had very severe stomach ache. हम लोग कैंप्स रिटर्न आए थे ना, that time I was working means for a long time because she was on leave at that time. So she had severe stomach ache and all those things. Okay. Before that, just before that, she got promotion. Okay. And she got like 5-star rating. जो on top rating economy मिलता है वो she got more bonus, everything, all those things, and many people appreciated her, all those things, many thank you and all those things. Then when this thing happened, I asked what happened, all those things. She was saying that मेरे किडनी में stone हो गया है अभी because of all those things. And then she said a realization, I dedicated my everything for work and this is what I got. समझ गए? So just for that promotion, that short-term thing, for that name, fame, for that temporary satisfaction कि मैंने कुछ करके दिखाया है, people praise her till now. Okay, that she is so talented. कुछ doubt हुआ, कुछ हम लोग नहीं कर पा रहे, they go to her. इस थोड़ा help कर दो ना, ये ऐसे नहीं हो रहा, all those things. That pride, name, fame, सब लोग मेरे पास आते हैं, all those things, promotion जल्दी going the ladder. But now, yesterday, she had a laser treatment because the stones were not dissolving by the medicine. Maybe she is 2-3 years younger than me. Now only she's having all these problems. Kidney stone ka laser ka treatment, operation, surgery, all those things. So this is what happens. So we have to inquire कि क्या मैं इस चीज के लिए यही मेरे लाइफ का गोल है कि माय लाइफ का गोल है कि मुझे भगवान के वापस जाना है. ओके, सो डजंट मैटर कि आपको ज्यादा एकदम उतना पैसा नहीं मिल रहा है और नथिंग. इफ यू आर गेटिंग सफिशिएंट, आपका घर सब चल रहा है, यू आर हैप्पी, नॉर्मल आपको भगवान दे रहे, जस्ट गो विद दैट बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल. ओके, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हु एम आई, व्हाई एम आई सफरिंग, क्यों मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, इसके नेचर कैसे, क्या बोलते काम करता है, मैकेनिज्म क्या नेचर का, उसके पीछे कौन है. अगर ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, मींस यू आर इंटेलिजेंट पर्सन. अगर ये क्वेश्चन है कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, अगला फिल्म में शाहरुख खान कौन सा रोल करेगा, ये सब आ रहा है, तो देन यू आर जस्ट यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड योर ह्यूमन बर्थ ऑफ लाइफ. सो आस्किंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज ये सब तो जानवर भी करते हैं ना. जानवर भी अपना खाने का जगह देखता है, कहाँ पर खाऊंगा. कुत्ता देखता है मैं कहाँ पर सोऊंगा, उसका इलाका होता है. वैसे हम लोग ने हमारा ओके, मैंने कुत्ता का घर है, हम लोग ने हमारा फ्लैट बना दिया, अच्छे से पॉश रहेंगे. They do sex on the road, we do sex in bedroom in some very nice ये करके करते हैं. वो रास्ते पे खाता है, we go in some posh 5-star hotel, spend करे पैसा करे खाते हैं. वो खुद को डिफेंड करता है with his teeth and nails, all those things. We build nuclear missiles and defend ourselves. तो सेम चीज कर रहे हैं, सेम इंक्वायरी कर रहे हैं. What is the use of human life instead of having so much intelligence, है ना? So inquisitiveness is very important. एक बार मायापुर में प्रभुपाद जी आए थे. So at that time he gave a class, and at the end of the class Prabhupada ji asked, if you have any questions you can ask me. So किसी ने भी आंसर नहीं दिया, and Prabhupada shouted, where is Jai Pataka? जोर से चिल्लाया. At that time Jai Pataka Swami Guru Maharaj was in some urgent or some service, busy in that, so he was not there. Then Prabhupada said that कि in every class wherever Jai Pataka Swami is attending, he always asks question, inquisitiveness. कि ऐसे ऐसे हुआ, इसका पीछे रीजन क्या है, what is the reason behind that. So if you ask question means आपको कुछ समझ में आया. क्वेश्चन आपने मतलब आप समझ पा रहे हैं टॉपिक को. अगर क्वेश्चन नहीं पूछा मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया. ठीक है. Inquisitiveness is a very important qualification of an ideal disciple. So पहला क्वालिफिकेशन क्या था? What was first qualification? Humble surrender, Prabhuji. Second is inquisitiveness. Okay. Inquisitive. So I have now one activity for you. यहीं पर यहाँ यही चीज दिया गया, श्रेयाज और प्रयास, जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, मैं जो आपको बोला था अभी. The same thing. Short-term benefit, people go behind. Shreyas and prayers. Now comes activity. So this is the first question. Okay, what 3 ingredients are required for one
to approach a spiritual master? डी प्रभु जी, सरेंडर, क्वेश्चन एंड सर्विस। ओके, वरुण प्रभु डी बोल रहे हैं, आप लोग का क्या आंसर है? डी। सूरज प्रभु डी। ओके, सुमन प्रभु? Okay, Varun Prabhu is correct. Only D is there. We need to surrender, we need to ask question, and then we need to serve. Okay, B में service, knowledge and question. Okay, surrender is not, that is the basic quality. Surrender नहीं करोगे तो जो सेवा करोगे, जो knowledge मिलेगा उससे आपको proud feel होगा, and then the question which you will ask, it will be not in a submissive way, you will ask in a challenging way, and that will create an offense, and आपका भक्ति उसमें down हो जाएगा. ठीक है? Next question for you. What wisdom did you learn from the two students who went for learning Mridanga? Multiple? No, only one will be correct. प्रभु जी ए। Okay. A में क्या बोला गया है? One should go to Mridanga teacher with a clean slate and learn, not with previous experience. Okay. So A में ये बोला गया है, but actual correct answer is B. Point number B. Okay. तो ये example का main point क्या था? It was not about clean slate. It was about कि आप लोग previous चीज को छोड़ के जो गुरु ने hearing from guru is very important. ठीक है, यहाँ पर क्या है? One should not bring one's cooked previous ideas, concoctions while hearing from a guru. गुरु ने बोला है ठीक है, clean slate was also there, correct, but जो example का main focus था on point number B. Okay, ठीक है. Now coming to next thing, yeah, submissive service. Okay, this is one of the very important qualification. So disabled should never become proud of his material qualification like education है, bodily beauty, handsome दिखते हैं, wealth है, high birth है. ये qualification रहेंगे तो आप कभी आपके spiritual life में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी जो ISKCON के फाउंडर आचार्य हैं, उनके गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो he was a very learned man. Okay, नैष्ठिक ब्रह्मचारी. From birth he was a brahmachari. कभी शादी किया नहीं. Prabhupada was a married man. Afterwards he took sannyas, but his guru was a Naishtika brahmachari, very learned and very intelligent, and he was called as Lion Guru. Lion Guru की बोलते थे उनको. He used to like आप कुछ भी argument देंगे, he will defeat you in that. अगर आप against में argument देंगे कृष्ण कॉन्सेप्ट, he used to defeat many Mayavadis, many people like that. Okay, logically एकदम. प्रभुपाद भी गए थे, प्रभुपाद को भी डिफीट किया, and Prabhupada understood first meeting itself कि this is a Lord Chaitanya's movement is in the very good hand, is in a very good hand, it is protected. प्रभुपाद समझ गए थे. पहले प्रभुपाद ऐसा नहीं था क्या? Prabhupada initially, because there were many bogus gurus and all those things, so Prabhupada also thought, his friend called him, चलो हम जाते हैं, is a very good Swamiji is there, he's doing a class there, तो आप प्रभुपाद मुझे नहीं जाना है, और they say something. But still उनका friend force के लेके गया प्रभुपाद. And Prabhupada heard the class, Prabhupada asked some question, and Prabhupada को, I don't actually remember that, Madhav told in one of the class, I forgot that, but he defeated Prabhupada in that. He gave, means he said such answer that Prabhupada was convinced in the first time itself. This is a real Lord Chaitanya का जो movement है, it is in protected hands, it is not in some bogus guru's hands. Okay, and that instruction was to go and preach to English speaking people. The first meeting में बोला था, first time जब Prabhupada से मिला था, वो बोला, you are educated learned man, why don't you go and preach to English speaking people? And वो Prabhupada ने अपने जिंदगी में करके दिखाया, impossible task. तो coming back to the topic here, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे गौर किशोर बाबा जी महाराज, जो देखो परंपरा में वहाँ पर है ना, प्रभुपाद जी और जो सेंटर वाले हैं गौर किशोर बाबा जी महाराज. So he was an illiterate man. Okay, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, was very simple,
and he didn't want name fame all those things. एक कोने में बैठ के बस दिन रात भगवान का नाम का जप करते थे, भजन करते थे, उतना ही. He didn't want to take any disciples. Just मुझे भक्ति करना है भगवान. So very high level. इसके लिए बाबा जी बोला है, गौतम बाबा जी महाराज. So भक्ति सिद्धांत ठाकुर wanted to take initiation from him. उन्होंने बहुत बहुत बार ट्राई किया कि मुझे दीक्षा बना दीजिए, मुझे आपका शिष्य बनाइए, पर वो बात नहीं माने. Then he said finally ऐसे डिसीजन हुआ कि अगर आपसे मुझसे नहीं मिला तो मेरा जिंदगी में जी के फायदा क्या है, ये सब इतना सीख के ये सब करके क्या फायदा है, बेटर आई गो एंड कमिट सुसाइड. then he was testing his disciples. सच में ये he's actually proud or not. हाँ, he's submissive or he's proud, he's humble or he's proud, and he passed the test. Even in spite of having so many things, in spite of having so much on everything, he was so humble, he was not proud. और इसमें को proud नहीं थे. तो ये जो पॉइंट है कि सबमिसिव सरेंडर, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट ये है एग्जांपल है. तो वो मंदिर वाले रूम में मोबाइल फोन वो मंदिर वाले रूम में. सो देन सनातन गोस्वामी का एग्जांपल तो मैंने आपको बोला था, राइट? वेरी प्राउड, नॉट एट ऑल, सॉरी, वेरी हम्बल, नॉट ऑल प्राउड. एंड देन देयर इज वन मोर very important pastime which happened. That was of Narottam Das Thakur. Loknath Swami. So Narottam Das Thakur was a prince. Okay, he was a very good person, very prince, और बहुत ही qualified, educated, everything. He was a very good Vaishnav, but he wanted to desperately take initiation from Loknath Goswami. Okay. Loknath Goswami was a very क्या बोलते हैं, great. He's a Goswami, very great personality, Loknath Goswami, but he always was in background. इतना सब कुछ होने के बाद भी never he doesn't want name fame, nothing. मैं background में रहूँगा, भगवान का सेवा करूँगा. He was of that mentality. तो बहुत बार उन्होंने अप्रोच किया लोकनाथ गोस्वामी को कि मुझे आपका शिष्य बनाए, दीक्षा दीजिए, पर वो बात नहीं माने, ये वो करके टालते गए. तो अभी कैसे इनको मनाऊं? तो लोकनाथ गोस्वामी every day morning to empty the stomach and all those activities, he used to go and in the forest and he used to do the activity and used to come back. So तो ये नरोत्तम दास ठाकुर is ये इनका नाम चैतन्य महाप्रभु ने उनका जन्म होने से पहले लिया था. गंगा मैया, समझ रहे? मतलब सोचे कितने बड़े हो गए डिवोटी नरोत्तम दास ठाकुर. तो वो जाके लोकनाथ गोस्वामी का वो पूरा स्टूल सब क्लीन करते थे, और वो जहाँ पर मिट्टी है उसको ये करके सॉफ्ट बनाते थे ताकि नेक्स्ट दिन जब आएंगे तो उसको क्लीन जगह मिले. वो मिट्टी निकाल के फ्रेश मिट्टी डाल देते थे वहाँ पर, ऑल दोस थिंग्स. और जब लोकनाथ गोस्वामी जाते थे देखते थे कि जा रहे सब तो क्लीन ही, इतना दिन हो गया, ऐसे तो क्लीन होना नहीं चाहिए जगह, ऐसे कैसे जगह सॉफ्ट कैसे. तो एक दिन वो छुपके से देखे कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, और देखा नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं. तो उन्होंने पूछा कि आप तो एक राजा है, प्रिंस है, उसके बावजूद आप ऐसे इतना मिनियल सेवा कर रहे हैं, इतना हम्बल सेवा कर रहे हैं. तो वो उनका हार्ट मेल्ट कर गया कि सच में ही वांट टू टेक हिज मतलब रियली वो मेरे से दीक्षा लेना चाहते हैं, और तभी उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी प्रकार महादाम प्रभु मेरे को एक बार बोल रहे थे कि जब वो मायापुर में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए थे, तभी वो लोग का मेन सेवा क्या था कि आप लोगों को जब वो फोर्स कर रहे थे मायापुर ब्रह्मचारी आश्रम में, तो वो लोग को उस टाइम को मायापुर में जितना भी ड्रेन्स है, ड्रेनेज, एवरीडे मॉर्निंग यूज्ड टू हैव टू गो एंड क्लीन द ड्रेनेज. एंड जितने भी टॉयलेट्स है मायापुर में, सब टॉयलेट्स को क्लीन करने, पब्लिक टॉयलेट्स, ब्रह्मचारी आश्रम टॉयलेट, सब टॉयलेट्स क्लीन, ऑल ड्रेनेज. So this is the menial service given so that you become humble. समझ रहे? This will test, this actually a test कि आप सच में कर पा रहे हैं कि नहीं. एक बार गौरांग में क्लास में बोल रहे थे ना कि एक गौरांग प्रभु जानते हैं आप, राइट? So गौरांग प्रभु और एक और डिवोटी थे, वो दोनों आश्रम में एक साथ ज्वाइन किए. गौरांग प्रभु थोड़े सीनियर थे, तो गौरांग प्रभु किचन डिपार्टमेंट में डाल दिया. रामनाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल गौरांग प्रभु उनको डाल दिया किचन डिपार्टमेंट. क्या किचन डिपार्टमेंट संभालिए. I don't know which temple was it, Pune temple or Mumbai temple, I don't know.
मुंबई टेम्पल आई थिंक, किचन डिपार्टमेंट डाल दिया, तो डिपार्टमेंट संभाल लेते। फिर उसके बाद एक और डिवोटी उनकी जस्ट बाद में ज्वाइन किए थे, तो उनको भी बोला आप किचन डिपार्टमेंट में सेवा करो। तो उनको क्या सेवा मिला कि आप जाके रोटियां बेलो। ओके, महाराष्ट्र में रोटी चपाती ज्यादा खाते, राइस में खाता नहीं हो जाता वहाँ पर, तो आप चपाती ये करके कुक करो। तो वो करने लगे। फिर आके कंप्लेंट किए गौरांग प्रभु को, डिपार्टमेंट इंचार्ज की, मैं इतना अच्छा प्रचारक हूँ, इतना अच्छा मैं बोलता हूँ, इतना सब कुछ मैं करता हूँ, मेरा स्किल को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे, मेरे को यहाँ पर क्यों डाल दिया, रोटी मिल रहा है दिन रात, मैं सब सेवा नहीं करूंगा करके वो आश्रम छोड़ के चले गए। और फिर 10 साल के बाद एक बार फिर से उनका मुलाकात हुआ किसी क्लास में या कहीं पर प्रोग्राम में, तो वो आके हाथ जोड़कर गौरंग प्रभु को बोल रहे कि उस टाइम को तो मैं ये रोटी बेलने के सेवा को ठुकरा के चला गया, अब तो मेरी शादी हो गई है और मेरी जो पत्नी है उन्हें कुछ बैक प्रॉब्लम है, तो मेरे को लाइफ टाइम रोटी बेलना पड़ता है घर में। समझ रहे? So this is what happened. Okay, it is very important to be very submissive. This is very important quality. Okay, और एक और बहुत important पास्ट टाइम यहाँ पर आता है राजा प्रताप रुद्र का। I don't know whether you have heard his name or not. जगन्नाथपुरी की स्टोरी है। तो हाँ, तो उस टाइम को चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में चले गए थे आफ्टर हिज संन्यास। तो वहां पर सब लोग पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है करके। Nobody knew at that time this thing. Many few people उनके एस्पिरेट्स के बात पता थी। तो जब रथ यात्रा का प्रोसेस जा रहा था, तो वहां पर कुछ एक कैलकुलेट नंबर था दैट दिस मेनी मिडल प्लेयर्स इन वन सर्कल। हम लोग डांस करते सर्कल बना के, एंड उसके बीच में एक और सर्कल, एंड देन सम डिवोटीज आर लाइक दैट। सो वैसे 3 या 4 सर्कल्स बने थे, बिग सर्कल्स, एंड each circle had some I think 6 मिडल प्लेयर्स एक सर्कल में कर रहे थे, करताल प्लेयर्स एंड ऑल, फुल धमाल से एकदम प्रोसेशन जगन्नाथपुरी का प्रोसेशन जा रहा था। और अगर पता तो अपने महल से देख रहे थे, देखे कि चैतन्य महाप्रभु हर एक सर्कल में है, नॉट ओनली वन सर्कल डांस, ये सर्कल सेट रहे, वहां पर भी राजा प्रताप रुद्र अपने महल से देखे कि इस सब सर्कल में है, तभी वो समझ पाया कि यही भगवान है। उनको इसके पहले एक और एक पास्ट है, उसका कनेक्शन में आपको कंक्लूजन में बोल दिया, तो तभी समझ पाया कि यही भगवान है। एंड देन ही वांटेड टू गो एंड ही वांटेड टू मीट चैतन्य महाप्रभु। तो उनके वहां पर एक बहुत ही हेड प्रीस्ट है पूरी मंदिर के, सार्वभौम भट्टाचार्य। ओके, तो उनसे जाके रिक्वेस्ट किए, पर चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलना नहीं चाहते। तो तुम तो राजा हो, यू लिव विद वुमेन, यू हैव सो मच नेम, फेम, वेल्थ, सो मच, और मैं तो एक सन्यासी हूँ, तो मुझे आपसे नहीं मिलना है। विद सो मच योर ऑल दोस थिंग्स आपका है, तो मुझे आपसे नहीं मिलना है। तो आप तो राजा प्रताप रुद्र फिर जब पूरी का जो प्रोसेशन होता है, तो वो खुद आके वहां पर झाड़ू लगाते थे जगन्नाथ जी के सामने, रास्ता साफ करते थे। जैसे अभी अगर आप लोग रथ यात्रा में देखेंगे, तो वो 2-3 डिवोटी सामने झाड़ू लगाते हैं, परिक्रमा में आते, परिक्रमा में नवदीप मंडल परिक्रमा, डिवोटी वहां पर सामने झाड़ू लगाते, भगवान का मार्ग साफ करते, भगवान जहाँ चाहते, तो वो करने लगे। एंड देन एक दिन राजा प्रताप रुद्र एक सादा ड्रेस पहने, एकदम सिंपल ड्रेस पहन के चैतन्य महाप्रभु के पास वहां पर गए मिलने के लिए, और उनका पैर दबा रहे थे। और पैर दबाते दबाते वो गीत गोविंद करके एक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एकदम गीत गोविंद, भगवान को बहुत पसंद है वो, तो गीत गोविंद गाने लगे। और चैतन्य महाप्रभु फिर उनको बहुत अच्छा लगा कितना भक्ति से कोई गीत गोविंद गा रहा है। तो उन्होंने पूछा आप कौन है, तो बोले कि मैं आपके सेवक का सेवक हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं राजा प्रताप रुद्र हूँ, मैं आपका सेवक का सेवक हूँ। तो ये दिस वाज द टेस्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कि सच में राजा होने के बाद भी ही इज रियली सरेंडर और नॉट। देखो यहाँ पर लास्ट में देखो यहाँ पर, हु आर यू? द किंग रिप्लाइड, आई एम ट्राइंग टू बी द सर्वेंट। Thus King Pratap Rudra's did not consider his high position in eyes of public. Instead, he always considered himself an insignificant servant of Lord and his devotees. Thus, he did not become carried away by the temporary post and did not become arrogant and proud. Okay, so ये इस प्रकार हमें submissive behavior होना चाहिए. Okay, so this was the third important qualification
तो पहला क्वालिफिकेशन क्या था? नोट्स देखना पड़ता है, हाँ, याद करने के लिए। सेकंड, इंक्विजिटिवनेस, हाँ, इंक्वायरी कि ऐसा क्यों है, ये क्या है, ये क्यों हुआ करके, ऑल दोस थिंग्स। थर्ड वन इज सबमिसिव सर्विस। ओके, और नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन इज डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो श्रील प्रभुपाद जी ना एक बार इसमें गए थे, एक गीता सम्मेलन में गए थे, हाँ, उसमें गए थे। तो वहां पर जाके देखा कि वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर बस एक लैंप है, एक दिया जलाया है, और वहां पर गीता का क्लास सब कुछ हो रहा है दिया जला के, और दे आर टॉकिंग दैट गॉड का कोई आकार नहीं है, भगवान इज निराकार, ऑल दिस थिंग्स दे आर टॉकिंग। तो प्रभुपाद ने बोला ये कहाँ पर लिखा है? तो उन्होंने बोले नहीं, हमारा विचार है कि ऐसा भगवान आकार है। तो जब भी आप किसी से भी कुछ बात करते हैं, अगर वो सम स्पिरिचुअल टॉपिक, ओके, अगर वो बोल रहे हैं कुछ भी, तो सी वो लोग कहाँ से रेफरेंस दे रहे हैं। अगर ये बोलते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ऐसा हो सकता है, ऑल दिस थिंग्स आर बोगस, समझ लो इसको खुद का मन का बातें बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है कि ये शास्त्र में ऐसे लिखा है कि ये चीज ऐसी है करके मैं वहां से बोल रहा हूँ, देन दैट इज ऑथेंटिक, समझ रहे? आई थिंक लाइक दैट, आई थॉट इट कुड बी लाइक दैट, मींस वो सब बोगस है, समझ रहे? तो जब भी if you by chance you fall prey to some YouTube videos and all those things and you think like these things are there, then you can connect with this thing, okay? So Prabhupada ने बोला in which scripture is written, वो लोग बोल नहीं पा रहे, हाँ, पर कोई शास्त्र में लिखा नहीं कि भगवान निराकार है, it's not anywhere। अब पढ़ के देखिए शास्त्र, भगवान का हर एक इसमें लिखा है कि भगवान हैज अ फॉर्म। निराकार क्यों बोलता है? अगर भगवान का रूप ही नहीं है तो सरेंडर, हम लोग खुद भगवान बन जाएंगे, हम लोग विल मर्ज इन दैट, विल आल्सो बिकम गॉड। हम भगवान के जैसे बन जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। आप भगवान नहीं, भगवान सब लोग भगवान, ऊपर कोई है ही नहीं, जो मन में आए वो करो। ब्रह्म का उपासना करते हैं वो लोग बोलते हैं आपके अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है, गीता पढ़ते हैं वो लोग। एंड इन दिस कॉन्सेप्ट मेनी मूवीज आल्सो केम, जो लोग को ये करे, ओ माय गॉड वाली मूवी आई थी। पर परेश रावल जाके बैंक मैनेजर से पूछता है आपके अंदर भगवान है क्या? बोलता हाँ मेरे भगवान को जो चाटा मारा। बोला कि हाँ आपके भगवान ने मेरे पैसे लिए इसलिए आपको चाटा मारा, तो भगवान ने इसलिए चाटा मारा। सी सच थिंग्स दे आर, पीके नाम का मूवी आया था, ऑल दोस थिंग्स दे आर क्या बोलते हैं, मिसलीडिंग। कोई भी स्क्रिप्चर से कुछ नहीं है, लोग को हंसाना है और पैसे कमाना है, जो मन में है उससे आप कर लीजिएगा, समझ रहे? सो इसमें आपको फंसना नहीं चाहिए, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो या तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को हमारा हार्ट में डिवोशन टू सुप्रीम लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हार्ट। बाय दैट डिवोशन वी हैव टू एक्सेप्ट अ गुरु, एंड गुरु के गाइडेंस से, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को एक्सेप्ट किया एज अ गुरु, एंड बाय द गाइडेंस ऑफ गुरु ओनली वी कैन प्रोग्रेस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कमिंग टू फिफ्थ क्वालिफिकेशन, व्हाट वाज द फोर्थ वन अगेन? डिवोशन टू सुप्रीम लॉर्ड, ओके। भगवान के डिवोशन, भगवान निराकार नहीं, भगवान का आकार है। This is very important thing to understand. Okay. I'd say this topic was already discussed to you in, I think, Mantra of Life course. Mantra of Life course, which has a topic discussed was that God is not formless, God has a form. Then coming to the fifth one, unflinching faith in the order of Guru. ये बहुत ही important एक qualification है। तो एक बार की बात है कि I don't know, कृष्ण और सुदामा, और कृष्ण और एक और सुदामा और someone else, I am not sure exactly who was there। तो उनके गुरु थे संदीपनी मुनि, हमारे इसमें पोस्टर था वॉइस में, संदीपनी मुनि सिखा रहे कृष्ण बलराम। संदीपनी मुनि वाज अ गुरु ऑफ कृष्ण। भगवान ने कि भगवान खुद एक्सेप्टेड अ गुरु, पहले पॉइंट में बोला था ना, इफ यू हैव अ गुरु, सो भगवान इज सेटिंग एन एग्जांपल टू शो अस कि भगवान फ्री में गुरु एक्सेप्ट कर रहा हूं, सो एवरीबॉडी डज दैट थिंग, ओके। सो संदीपनी मुनि गुरु थे, तो वो दोनों बच्चे कृष्ण और वन ऑफ हिज फ्रेंड, सो उन लोगों को सेवा देता कि आप लोग जाके आप लकड़ी लेके आइए फॉरेस्ट से। तो वहां पर गए और बारिश हुआ, सुदामा थे, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट, सुदामा थे, राइट? हां, ये नाटक में हुआ था, दिखाया था। ओके कैंप में, ओके, वेरी नाइस। तो वहां पर गए, और जब गए तो उन्होंने सब
लकड़ियां कलेक्ट किया और जोर से बारिश आने लगी। तो अभी क्या करेंगे? तो दोनों ने क्या किया, शायद से ऐसे हाथ पकड़ के दोनों ने सर पे लकड़ी रख के शेयर किया, और शेयर करके एक हाथ से लकड़ी पर दोनों हाथ पकड़ के वहीं पर खड़े थे पूरा रात जंगल में। दे स्टेड इन द फॉरेस्ट, शेल्टर लिया और रात भर मतलब एक दूसरे को छोड़ के भागे नहीं, हेल्प वन अनदर। ओके, और फिर सुबह उनके गुरु चिंतित हुए कि दोनों बच्चे गए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया। इस श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 80 नंबर वर्स में ये स्टोरी आता है। ओके, देन गुरु गए वहां पर, जाके दोनों ने गुरु डिसाइपल्स जाके सुबह देखा कि क्या हुआ क्या नहीं, और उनका ये एटीट्यूड देख के कि इतना अच्छे से वो मतलब उनका गुरु के इसमें इतना फेथ है कि अब एक साथ रहो और सेवा करो, और तो फेथ देख के गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया। तो ये वाला आप कोई पढ़ सकता है, दिस वन। ओके, सुमन प्रभु आप रीड कीजिए। The Supreme Lord does not need the blessings of anyone, but he sets the example of an ideal disciple for us to follow. Krishna recalled the incident in this way. Without the blessings of the spiritual master, no one can be happy. By the mercy of the spiritual master and by his blessings, one can achieve peace and prosperity and be able to fulfill the mission of human life. Correct. So this is very important to understand. Okay. Yes, वरुण प्रभु आप ये रीड करेंगे नेक्स्ट। वरुण प्रभु, okay, maybe he's raising some with lines. Okay, सूरज प्रभु आप रीड कीजिए। These are all very important points I wanted to showcase. The faith described herein is not simply intellectual agreement on some theological matter. Rather, the disciple must completely surrender himself as the servant of the Guru and take up the Guru's instruction as his life's mission. After all, the Guru acts as the disciple's savior. The disciple therefore owes a debt to his Guru, who has personally lifted him out of condition, ignorance, and blessed him with the perfection of eternity, bliss, and knowledge. In his turn, the Guru must execute his duties humbly as a servitor of the Supreme and of his own Guru in the discipline succession. करेक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपको मिल रहा है, एवरीथिंग, नेम पे, मनी, ऑल दोस थिंग्स, इट इज बिकॉज of the Guru Parampara से जो कृपा आ रहा है, from that you are getting this. It is not that you are doing that thing. Okay, you have been used as an instrument to do that thing. So अगर आपने कुछ अच्छा चीज का आपको अच्छा सेवा किया, you have got appreciation for that. कि हाँ आपने बहुत अच्छा सेवा किया प्रभु. Just pass that appreciation to the previous acharyas and Prabhupada and to the Parampara. कि उनके वजह से मैं कर पाया हूँ. वो अगर हम खुद ले लेंगे, then we'll become proud. मैंने किया है, बस. And that is the full stop of your spiritual life. ठीक है, so this is one of the very important qualification one has to understand. Yeah, this is very important story comes in our scriptures. Okay, एक ऋषि थे, उनका नाम था धौम्य ऋषि। तो उनके 3 स्टूडेंट्स थे, अरुणी, वेदा और उपमन्यु। ओके, तो एक बार क्या हुआ था, बहुत ही मतलब लॉट ऑफ रेनी डे वाज देयर, आप फोटो में देख सकते हैं, इतने रेनी बहुत। तो वहां पर जो फील्ड थे, फार्म्स होते हैं, बॉर्डर करते और वो पानी उसके अंदर ना आए करके वो करके रखा था। बट वो जो एक रिवर था, स्ट्रीम था, इट वाज गोइंग टुवर्ड दैट डायरेक्शन, और वो बांध ऑलमोस्ट टूट रहा था। तो उनके गुरु ने बोला कि आप जाके उसको अच्छे से अरेंज कीजिए। बहुत ट्राई किए, मिट्टी से किए, उसको डिग करके डायरेक्शन चेंज करने का ट्राई, कुछ नहीं हुआ। तो क्या किए, तो खुद जाके वहां पर सो गए, एज अ बांध के रूप में खुद जाके पानी को ब्लॉक करने के लिए वहां पर जाके सो गए। एंड टाइम होते गया, रात हो गया, अभी तो अरुणी आया नहीं, कहाँ गया अरुणी। फिर वो सब गुरु शिष्य आके देखने लगे, स्टूडेंट सब देखा तो वो वहां पर एक बांध का जैसे बिहेव करके वो पानी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये देख के गुरु बहुत मतलब प्रसन्न हुए कि ये इतना उसका सरेंडर है, वेरी वेरी टॉप लेवल सरेंडर। ओके, बहुत लोग ये कर नहीं पाएंगे, खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। ओके, कि गुरु का ये आदेश पालन करने के लिए। दिस वाज अरुणी, फर्स्ट लेवल ऑफ सरेंडर। एंड सेकंड स्टूडेंट वाज वेदा। तो वेदा जो स्टूडेंट था, अगर वो गुरु को बुलाएंगे नहीं
कि आप आओ प्रसाद लो, प्रसाद ग्रहण करो, तो जाएंगे नहीं। वो वहीं पर रहेंगे, उपवास करेंगे, तपस्या करेंगे, ज्यादा भक्ति करेंगे। He used to do like that. So he was of that little. He was also very good, but in a different way with surrender. Okay. Aruni was top. This is second. And then there was Upamanyu. Upamanyu was very fatty boy. Okay. गोलू मोटू फुटबॉल के super fatty boy थे। तो वो उपमन्यु बहुत मतलब हेल्दी थे। तो गुरु जाके उसको पूछे कि आप खुद को इतना मेंटेन कैसे करते हो, इतना हेल्दी। हाँ, तो वो बोलते, उपमन्यु क्या बोले कि मैं जाता हूँ घर घर में और भिक्षा मांगता हूँ, और जो भिक्षा मिलता है मैं उससे खा लेता हूँ। तो गुरु बोले कि तो गलत है, जो भी आप भिक्षा मांग रहे हैं वो गुरु को देना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए, यही आपका सेवा है। तो ठीक है, फिर वो फॉलो किया इंस्ट्रक्शन वैसे। तो फिर 1 महीना हो गया, फिर से आके गुरु देखा, उसका वेट चेक किया, वैसे ही बैठे गोल्ड मोल्ड, कुछ दुबले हुए नहीं। तो फिर उसको बोले कि अभी क्या, तुम अभी कैसे क्या कर रहे हो, तुम तो तुम्हारा वेट कम होना चाहिए, तुम अभी इतना हेल्दी कैसे हो। बोलेगी तो पहले मैं आपके लिए जाके भिक्षा मांगता हूँ, आपको देता हूँ, फिर मैं खुद के लिए मांग के भी खाता हूँ। ओ बोले नहीं, ये तो इट इज फुल्ली सिन, वी शुड नॉट डू लाइक दैट, ओनली गुरु के लिए ही करो, गुरु की परमिशन से तुम कुछ खाना नहीं चाहिए विदाउट परमिशन ऑफ गुरु। तो ठीक है, तो वो माना, फिर वो ऐसे नहीं किया, जो भी जाता था करके गुरु को लाके जाता। अभी क्या करे, भूख लग रहा है, क्या करे, जाके देखा कि वहाँ पे गौशाला है, वहाँ पर जाके दूध पिए लगा, सब दूध पिए लगा वहाँ पर जाके। तो फिर से 3rd महीना हो गया, गुरु फिर से आके चेक किए, फिर भी ऐसे ही है, गोल्ड वाटर फुटबॉल खेलते। तो क्या हो गया, आप अभी भी इतना हेल्दी कैसे है। तो उन्होंने बोला कि मैं जाके गौशाला का दूध पीता हूँ। तो बोले ये तो दूध तो भगवान के लिए है, आपको नहीं पीना चाहिए। तो ठीक है, फिर वो भी स्टॉप कर दिया। गुरु सब रास्ते बंद कर रहे उसके, क्यों करे गुरु, सो ही बिकम्स फिट, राइट। कि मोटा है तो लेजी रहेगा, बराबर से करने पर लेजी रहेगा, बीमारी आएगी, ही शुड बिकम फिट। सो गुरु वांट्स टू मेक द डिसाइपल प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो वो किए। अभी गुरु ने कुछ सेवा के लोगों को भेज दिया जंगल में, कि आप ये कुछ लकड़ियां लाओ, कुछ तो बोला लकड़ियां लेके आओ, कुछ तो सेवा बोला था। अभी जंगल में गए, अब भूख लग रहा है, ना भिक्षा मांग सकते हैं, ना दूध है, ना कुछ कर, तो क्या करे। वो बोला क्या, के कुछ झाड़ के कुछ फ्रूट्स थे, उनको लगा कि वो चलो फल है, योर नॉलेज, वो फल खा लिया सब पेट भर के। बट दैट फल वेर पॉइजनस फल, एंड दोस फल्स आपका रोशनी चला गया। ही बिकेम ब्लाइंड। अभी कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करूं, गुरु को चिल्ला रहा है मुझे मदद कीजिए प्लीज, गुरु महाराज आप कहाँ पर है। अरुणी मेरा सब लोग को, उनके फ्रेंड्स को बुला रहे हैं। जंगल में खो गया रास्ता, और भटक जाके कुएं में आके गिर गया। कुएं में गिर गया, वहां पर सफर कर रहा है, पसीना, कुछ दिख नहीं रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। देन ऋग्वेदा से कुछ श्लोकास उसको, जो गुरु ने सिखाए थे, वो उसको याद थे। कुछ श्लोकास रिसाइट किया विद लॉट ऑफ डिवोशन। अश्विनी कुमार दे केम ओवर देयर, सरका डॉक्टर, हाँ दे केम ओवर देयर, एंड उन्होंने उनको एक फ्रूट केक, मतलब केक ऑफर किया कि आप ये खाइए करके। बोले नहीं, मेरे गुरु ने बोला है कुछ नहीं खाना है, उनके परमिशन से मैं कुछ नहीं खा सकता हूँ, इज द परमिशन ऑफ माय गुरु। तो वो वहीं पर है। और ये देख के अश्विनी कुमार गॉट प्लीज्ड, उनके ये एटीट्यूड देखकर, और उस टाइम को सुनो कि गुरु भी आ गए, एंड देन ही गॉट द आईसाइट, हिज आईसाइट बैक। सो ये स्टोरी में इसके लिए बोला था आपको कि should have unflinching faith in order of a guru, okay। और गुरु ने आपको कुछ ऑर्डर दिया है कि आप जाओ और आप ये सेवा इस तरह से करो, okay। आपको ऑर्डर दिया है, but you go because guru knows everything, he is experienced person, not like some teacher of this। guru is not teacher, okay, there's a difference between teacher and a preacher। teacher मतलब उसके सब्जेक्ट के बारे में पता और कुछ पता नहीं है, okay। a preacher और गुरु, he knows everything, he knows कि आप क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के बारे में पता है, स्क्रिप्चर्स की सब्जेक्ट, स्क्रिप्चर के बारे में पता है, फिर लोग को टेक केयर कैसे करना वो पता है, लोग कैसे सोचते हैं, कोई प्रोग्राम अटेंड करना है, प्रचार कैसे करना है, he knows everything, कुकिंग कैसे करना है, everything। that person becomes a guru, an actual preacher, okay। difference between preacher and teacher is teacher will just teach and he will leave, okay। ये मैं ISKCON में आने से पहले I was associated with one other organization, Art of Living, okay। तो वहाँ पर उनके गुरु है रविशंकर जी। तो रविशंकर जी बोलते थे कि हम लोग ने सिखाया सब लोग को प्राणायाम में कैसे करना, ऑल दोस थिंग्स, ओके। आपने सिखाया किसी को, आप टीचर है, आपने सिखाया। सो आफ्टर दैट दैट्स ऑल, आपने सिखाया, आपका काम हो गया बस। नाउ नो नीड टू गो बिहाइंड देम,
अब ऐसे ना देयर रिस्पांसिबिलिटी टू उनका रिस्पांसिबिलिटी को नो करना चाहिए. You don't need to go and go behind them. Okay, this is called teacher. Okay, अब सिखा दिया, अभी आपका रिस्पांसिबिलिटी है ना. But a preacher means आपको सिखाया पहले, then he is doing a follow up. आप सच में फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, कहाँ पर आप अटक रहे हैं, हाउ दैट पर्सन इज ग्रोइंग उसका केयर लेना, उसको बढ़ाना, भगवान के पास कैसे ले जाना. दिस इज preacher. He knows everything. That is what is also a guru. Okay, so ये हमें faith होना चाहिए गुरु के ऊपर. गुरु जो बोल रहे हैं, he is telling correct only. There is no doubt, there is nothing wrong in that. एक बार ये भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज is an African guru. So उनके गुरु थे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज. He is also African only. So क्या हुआ था कि भक्ति धीर दामोदर महाराज जो है ना, क्या बोलते हैं, he was a brahmachari. Okay, and it is very difficult to remain brahmachari lifelong. It is not so easy. Okay, actually कलयुग में ब्रह्मचारी, कलयुग is not, इसमें ब्रह्मचारी रहना not at all possible. But if you have taken shelter of Chaitanya Mahaprabhu and you are very very sincere, top sincere, then only you can maintain that. Okay, इसके लिए मैं बहुत बार सुना हूँ कि it is very normal to see people who are coming in bhakti and going out. But it is very shocking to see कि lifelong ये कर पाया करके. That is a shocking scene. Krishna consciousness में कि आप youth age में आए और आप end तक 60-70 साल की उम्र तक भी आप वही भक्ति कर रहे हैं. That is shocking. आके कोई आया, 4 महीने के बाद चला गया, 2 साल के बाद चला, 4 महीने के बाद चला गया. Very common scene. बहुत देखा हम लोगों ने ऐसा. So हाँ, coming to this point, तो महाराज ना, he was leading kitchen department in some African country, I think, at that time. So what happened कि कुछ ये YouTube में recorded है in Garia was YouTube channel this class. तो महाराज वहाँ पर बोले some girl, some माताजी were advancing towards him, proposing him or something, and Maharaj was rejecting that. कि नहीं, I don't want to go that way. I am a brahmachari, so I want to remain celibate throughout my life and serve my guru. तो ये माताजी लोगों ने क्या किया, because Maharaj is not accepting the proposal, so उन्होंने जाके भक्ति स्वामी महाराज को जाके झूठ कंप्लेंट कर दिया कि महाराज देखिए ये ना हमको खाने को देता नहीं है, हम जाते हैं प्रसाद देता नहीं है, ऐसे करता है, सब लोग हमको प्रसाद दे देगा. झूठ कंप्लेंट किया. भक्ति महाराज ने उनको बुला के उनको फिर डांटा कि तुम ऐसे क्यों करते हो, क्योंकि महाराज से कोई गलती नहीं था उसके अंदर. ऐसे क्यों करते हो तुम, ऐसे नहीं करना चाहिए. आज तुम पूरा दिन बाहर रहो, उपवास करो और बाहर आउटडोर सेवा करो, अंदर मत आओ. हाँ, और एक्चुअली उन्हें गुरु को पता था, बट स्टिल ही डिड दैट. एंड महाराज बोला कि मैं वो टॉलरेट करके मैं ये किया, इसके लिए आज मैं इस्कॉन में हूँ. टिल नाउ ही इज इन इस्कॉन. Till at this level also, and Maharaj is very very senior. He chants 25 rounds every day. वो शाम को 8 बजे सो जाते हैं, रात को 8 बजे he sleeps. He eats only one time in a day. Just he takes lunch. He sleeps at night 8 o'clock, wakes up at morning 2:30, 2 o'clock something, and then he completes his chanting before Mangala Aarti. ये schedule follow करते हैं महाराज अभी तक. And very very inspirational. आप he will just give some short class, 40 minutes का क्लास देंगे और उड़ा देंगे आपको पूरा. लोग और एक बार बोलिए. भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज. भक्ति तीर्थ भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज. अच्छा, भक्ति धीर. So very very it's a very high example आपको. I don't know whether you will digest it or not. मैं थोड़ा बहुत high level का बोला, ठीक है. But महाराज ने क्लास में ऐसे बोला था. तो अनफ्लिंचिंग फेथ कि कभी कभी आपको आपके सीनियर्स या काउंसलर बोलते हैं कि आप ये सेवा ऐसे करो, पर आप क्या करते हैं, आप कोई और रूट से करते हैं और रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट के, बट अथॉरिटी विल नॉट सेटिस्फाइड. मैंने बोला था ऐसे करो, पर आपने उस रूट से क्यों किया, यू विल नॉट सेटिस्फाइड. रिजल्ट तो आया, पर इफ योर अथॉरिटी इज नॉट सेटिस्फाइड, देन वो उतना रिजल्ट मिलके भी आपको कोई फायदा नहीं है. ओके, क्योंकि आपको उनका ब्लेसिंग्स, उनका कृपा मिला नहीं. Okay, so if someone is saying something, we should not put our tiny intelligence in that and उसको ये वो करना, ठीक है. कभी कभी गलत भी हो सकता है. कभी कभी अपने जो सीनियर्स है, sometimes अपने जो गुरु है, अपने काउंसलर है, sometimes they can say something कि आप ऐसे करो, but that leads to
समथिंग रॉन्ग, मतलब उतना रिजल्ट आया नहीं, बट स्टिल आपने फॉलो किया उसको, देन ऑल्सो विल प्रोग्रेस। समझ रहे? बिकॉज आपके मन में फेथ था, आपके मन में वो फेथ, गलती सबसे होती है गलती, राइट? इट इज नॉट दैट गलती होगी नहीं करके, मे बी 99% करेक्ट है, 1% गलती तो होता है किसी से। So, faith, unflinching faith in order of the Guru. So this is what is required. So Aruni का example, Krishnama का example, इससे we have to learn this. And coming to the last qualification, avoid truthfulness. इसके पहले 5 qualification क्या क्या थे? पहला qualification, Humbleness, तापर asking, humble surrender. Second, asking questions. inquisitiveness. Third, submissive service. Submissive service. Fourth, devotion to Supreme Lord. Devotion. याद रखिएगा, ठीक है? हाँ. भूल जाएंगे तो बातें। Fifth is It is Unflinching faith in order of Guru. In order of Guru. correct. And last is unavowed truthfulness. मतलब you are fully truthful to your authorities and your guru. तो इसका भी स्टोरी है. So why I am explaining these things, this story, because this thing आप भूल जाएंगे उस टाइम के बाद. इसके लिए मैं स्टोरी बोल के रिलेट कर करके आपको प्रैक्टिकल वे बोल रहा हूँ. ताकि स्टोरी याद रहेगा तो आप वो पॉइंट याद कर पाएंगे. ये स्टोरी में ये पॉइंट बोला गया था करके. ठीक है? That's why I'm saying stories. इस पर स्टोरी के ऊपर ये पूरा. तो एक बार क्या हुआ था, एक बच्चा था, सो उसको सीखना था अब कुछ अपने गुरु के पास जाके. ही वांटेड अ गुरु टू गाइड हिम इन हिज लाइफ. सो वो देखे एक आश्रम में गए और बोला कि क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ क्या? तो उन्होंने पूछा तो बेटा क्या आप ब्राह्मण फैमिली से हैं? तो बच्चे ने बोला कि मुझे तो पता नहीं है. तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ और जाके आपकी मम्मी से पूछ के आओ. ओके, तो गया आपके पिता कौन से ब्राह्मण फैमिली से या क्या है? तो गया मम्मी से पूछने के लिए. वही बोली कि उस टाइम को मेरे को खाने के पैसे नहीं थे, and I was so poor and all those things, so I have associated with many men. बहुत पुरुषों का संग मैंने किया है और अब मुझे पता नहीं कि उनमें से आपका पिता कौन है. माँ ने तो जवाब दिया बेटे को. अभी बेटा क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए इस टाइम में? नॉर्मली क्या करते कोई इंसान जाके बोलेगा ऐसे किसी और को कि मम्मी ने ऐसे बोला है करके. बट दैट बॉय केम एंड टोल्ड द सेम थिंग टू मी. मेरी मम्मी ने बोला कि उनको पता नहीं कि उनके मेरे पिता कौन है. मदर डजंट नो हु इज माय फादर बिकॉज़ शी हैज स्टडीड मेनी मेन एट दैट टाइम एंड शी वाज वेरी पुअर. एंड ये जो सच्चाई है ऑफ दैट बॉय, ये दिस इज व्हाट अट्रैक्टेड द मर्सी ऑफ गुरु एंड ही एक्सेप्टेड हिम एज अ डिसाइपल. समझ रहे? ये बहुत है अवॉइड ट्रूथफुलनेस कि सच बोल दिया जो भी है. इट डजंट मैटर कि आप ब्राह्मण फैमिली से कि क्षत्रिय कास्ट से कि शूद्र कास्ट से, डजंट मैटर. यू कैन बिकम अ डिसाइपल. ओनली थिंग इज दैट दिस क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रूथफुलनेस की सच्चाई होनी चाहिए. दैट यू हैव टू. अगर आप क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप ये चीज किया है, हैव यू ब्रोकन अ रेगुलेटरी प्रिंसिपल, और ये बोला गया है, ओपनली बोलिए. यू शुड नॉट फियर दैट प्रभु ने मैं बोलूंगा तो प्रभु डांटेंगे मुझे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में. ये सब आप अगर किए मतलब देन आपका इतना प्रोग्रेस नहीं होगा भक्ति में. ये बात समझ लीजिए. सो दिस बेसिक थिंग्स आर देयर. अगर आप बोलेंगे तो ज्यादा से क्या होगा, वो डांटेंगे आपको. ठीक है, कि कुछ पनिशमेंट देंगे कि तुम कितना टाइम से ये चीज करो, ऐसे करो करके. सारे शब्द पर क्लास में बोल रहे थे कि एक लड़का उसने कुछ गलत चीज देख ली इंटरनेट पे. वो आके आप काउंसलर को बोल दिया कि प्रभु मैं ऐसे कुछ गलत चीजें देख लिया इंटरनेट पर, वही मेरे माइंड में आ रही है बार बार. चैटिंग करो तो वो चीजें आती है, ऑल दोस वाहियात ख्याल मेरे मन में आते हैं, ऑल दोस थिंग्स. तो काउंसलर ने क्या बोला, ठीक है यू गिव योर फोन टू मी. उनको बटन का फोन दे दिया एंड फ्रॉम नाउ ऑन इंस्टेड ऑफ 16 राउंड्स वी चैंट 20 राउंड्स एवरी डे. एंड उनको कुछ पर्टिकुलर बुक्स दिया पढ़ने के लिए, 20 राउंड्स. इस माला जप करो और एक पर्टिकुलर बुक दिया. एंड ही डिड दैट फॉर 4 months कंटिन्यूअसली एंड ही अगेन बिकम spiritually solid, again back to that state, and that's what now he did not repeat that mistake again. सच बोला and he became more strong in spirituality. अगर वो झूठ बोलता कि क्या बोलेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, all those things बोलता, तो वो फिर से वो गलती कर बैठता बार बार. समझ रहे? So this is very important thing, avoid truthfulness. तो ये चीज हमको समझना चाहिए. Okay, so these were the 6 qualification of an ideal disciple. So we have 5 more minutes. So अगर आपके questions हैं,
any comments, any feedback, तो आप you can ask I have a questions. question actually. Can I ask? हाँ बोलिए. Actually, many days ago, I heard from YouTube actually that Zakir Naik said that God has no shape. And God has no shape. no shape. Yes. कोई आकार नहीं है. And he also gave the reference from Isopanishad. Isopanishad. That Upanishad is the higher scriptures. Ved and Upanishad is our higher scriptures. And he is from gave reference from Upanishad. So how much is it is true? कौन सा मतलब क्या श्लोक बोले थे उपनिषद से? क्या श्लोक मेरे पास एक्चुअली लाइक कर रहा है तो हम आपको बाद में बोलेंगे कौन सा श्लोक है. Okay. एंड ऑल्सो मैं सर्च किया था वो श्लोक इसमें गूगल पे, तो वहाँ पे जो परपोर्ट्स वगैरह आते हैं या बहुत लोग पूर्वा में ऐसे करते हैं ना, तो उनका एक्चुअली मीनिंग वो ठीक से बोल नहीं पाया. ये मीनिंग को कोई मैनिपुलेट करके बोला, तो ये मैं नहीं जानता. सिर्फ श्लोक में बोल सकता हूँ. Okay. So जैसे मैंने पहले ही बोला था, right? So that Zakir Naik, right? Zakir Hussain, नाम क्या? Zakir Naik. Zakir Naik, हाँ. So he has done some theology in some cross religion, something like that. हाँ. Okay. Now theology क्या है? So I'll just tell you one basic thing. कि ऐसा भी टाइम था कि मैं कॉलेज डेज में I used to go to church. Okay. अच्छा. हाँ. So मैं सब ट्राई करके आ चुका हूँ. Okay. Last में बोला this is only the perfect thing. Art of League में गया, वहाँ पर ट्राई किया, योगा प्राणायाम सब कुछ, चर्च में गया. My most of my friends are Muslims and Christians. अच्छा. So I used to also follow something in Islamic also, all those things, but I was not feeling happy. So मैं generally बोल जब मैं church में गया था, so they also used to have like youth classes like us. Okay. So फिर मैं उनको basic question पूछा था कि okay church तो है right, so I can go in any church. So they were, no, you should come to this church only. You should not go to any other church. इतना सारा church है चेन्नई में, Chennai had lot of churches. Now also they are there. So उन्होंने बोला why like that? तो उन्होंने बोला जो Bible है, so Jesus said Christ has said something, but then Pope Catholics follow this part, and we are follow Martin Luther King, and we follow this part. So Bible में ही they have some things, variations, and different versions are there. Okay. And same thing in Islam also, Shias and Sunnis and all those things, they have those things. Okay, like that. Same thing in Bhagavad Gita also. Now so many versions are there of Bhagavad Gita. सब लोग अपना मैनिपुलेट करके गीता को बोल रहे हैं. So now from where he has एक श्लोक है, but somebody manipulated it. And as a student you are learning that. आपने theology के कॉलेज में एडमिशन लिया, theology in religion, जहाँ पे आपको सब religion सिखाया जाएगा. Religion में का origin में, और उसका आपको एग्जाम देना, that is very one of the very high kind of course. आपको सब बाइबल पढ़ना पड़ेगा पूरा, आपको गीता पढ़ना पड़ेगा, आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, जो भी स्क्रिप्चर्स है, all scriptures you have to learn, and आपको written exam होगा, all those things. ठीक है, very nice, you are giving very good education, सब religion सिखा रहे हैं, but उसमें से कितना authentic है ना? Is the Bible authentic? I'll just finish this thing. Is the Bible authentic? तो गीता का scripture में से is it authentic? और जो वो कितना authentic है, that we don't know. Okay, वो मैंने करके सिखा गया, then we'll repeat the same thing. So that is one point. And एक है कि श्रुति और स्मृति, ऐसा एक है कि मैं कहीं पर सुना था कि उन्होंने ऐसे बोला था कि वेदास आर भगवान ने बोला है, और उसके बाद जो महाभारत और ये सब लिखा गया है by the devotees. Okay, all those things. Okay, but these devotee has written that Vyasdev, who is nothing but incarnation of God only. विष्णु भगवान क्या होता है? That basic thing अगर आपको पता नहीं और उसके ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं, then it is not good. So you can tell me that श्लोका कहाँ पर बोला गया है? This thing. वो actually also ISKCON लुधियाना में क्लास देते हैं, तो उनका भी YouTube वगैरह चैनल है, तो उनको भी कोई सेम श्लोक पूछा था कि ईसोपनिषद यही श्लोक, तो उनका जो अर्थ है वो जाकिर नायक से ही एक्चुअली जो पूछा था क्वेश्चन ऐसा बोल रहे थे, बट प्रभु बोल रहे थे कि आप जो ये चीज का जो व्याख्या कर रहे हैं, जो अनुवाद आप बोल रहे हैं, ये अनुवाद बोल रहे हैं, आपको कोई मैनिपुलेट करके अनुवाद किया है. प्रभु ने ऐसे बोला. हाँ, प्रभु ने ऐसे बोला. बोला. हाँ, लुधियाना का प्रभु ने बोला कि ये सही है, एंड उसको बोला कि आप अगर ऐसे बोलते हैं तो ISKCON के भाषा में इसको मायावाद बोला जाता है. Correct, मायावाद. Okay, see
उसका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, मतलब कि अभी मोदी गवर्नमेंट है, ओके, ठीक है, सो मोदी इज नॉट इन्वॉल्व करेंटली हियर, बट ही हैज, द गवर्नमेंट इज रूलिंग कंट्री, okay, so similarly Krishna is there as a person also, and he is there everywhere also, in all the atom and everywhere, and it is like we are inside Krishna, kind of, he is everywhere, right? Yes. वो सब जगह पे, in every atom, in our atoms, everywhere, in our soul is there, everywhere is there. So that is also, that concept also there. Nirakar is there. Okay, that concept is there. Nirakar ability, it is a feature of God. It is not God. It is a feature of God. जैसे कि आपके भी अलग अलग फीचर्स हैं. मोदी सिर्फ there. But who is controlling that feature? Krishna only, right? Who is controlling मोदी गवर्नमेंट को? मोदी प्राइम मिनिस्टर इज कंट्रोलिंग दैट होल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का लॉस सब जगह पे हो रहा है, सब जगह पे एक्टिविटीज हो रही है. सो बट कंट्रोल एक पर्सन कर रहा है. सिमिलरली कृष्ण भगवान इज डूइंग इट, ही इज द मेन कंट्रोलर. सो ऐसे में सुना था कहीं पर, मानव गुरु सेशन में बोल रहे थे. ओके, दिस इज देयर एंड देयर वाज वन class of Mohan Rup Prabhu, I think. He has repeated this argument. If I have it, I'll just share it now. Maybe. Mohan Rup Prabhu. I'll just stop sharing this. Varun Giri Prabhu अब क्लास में है, right? तू सिंपल बोल रहे थे, ऐसे मैंने कहीं सुना है कि बट हमको तो संस्कृत वर्ल्ड में अर्थ में जब हर चीज का एक शेप है, तो भगवान का शेप ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कॉमन सेंस है इसमें, हर चीज का एक शेप है, तो जो उसको बनाने बट वाला प्रभु उसका क्या है shape कि कैसे ना? जो वेदास में बोला गया वो तो सब संस्कृत में बोला गया, तो हमको तो एक्चुअली उनका संस्कृत पता नहीं है. संस्कृत का श्लोक मतलब उनका अर्थ हम कैसे पता करें? और फिर अंग्रेजी की हिंदी से हाँ, मोहन रूप प्रभु. Join the community of more than 2 million Biharists who are investing all one their person was repeatedly asking this question. I heard it long back. This one. I don't know. आप लोग ने देखा है कि नहीं? मैं भी कुछ दिन मैंने जो फेसबुक पे देखा. Sharing my screen. Okay. आप देख पा रहे हैं वरुण गिरी प्रभु? या अभी तक शेयर नहीं हुआ है. Are you able to see now? हाँ, हाँ, अभी. आप लोग देखिए. I'll just come back. क्या ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई सत्ता है? अगर ईश्वर से बड़ी कोई संसार में सत्ता है तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता है नहीं. ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? हाँ जी, क्या ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं वो भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा. गीता ज्यादा ऊपर है या वेद ज्यादा ऊपर है? वेदेश सर्वेरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद संस्कृत में बोलेंगे तो सिर्फ मुझे समझ आएगा. भगवत गीता में भगवान कह रहे 15 अध्याय के 15 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा तो मुझे ही जाना जाना है, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदांत भी मैं ही हूँ. तो ईश्वर है ना वेदों की रचना करने वाला? भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं. तो भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभो और भौतिक जगत का भगवान गीता ने तो 5000 वर्ष पहले कहा है. उससे पहले जब गीता नहीं थी, ओनली फॉर वेद, वेद का ईशोपनिषद पढ़िए, ईशावास्यम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत्. चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन गुरु जी, गीता से पहले वेद था. मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए मुझे. आप कह रहे हो कि भगवत गीता पहले 5000 साल पहले बोली गई. भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोल रहे हैं चौथे अध्याय में, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विश्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले, 5000 साल पहले नहीं. आप बताइए. ये उनके अंदर भगवान कृष्ण ने सूर्य देव विश्वान को दिया, और सबसे पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान सृष्टि की प्रारंभ में, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, ब्रह्मा जी को दिया. और बताइए. ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में मात्र 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, और भगवान कृष्ण खुद वेद पढ़ करके गीता जैसा अमर ग्रंथ बोलने के काबिल हुए, ऐसा शास्त्र प्रमाण है. शास्त्रों में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है. क्या भगवान बता दीजिए पहले. क्या भगवान राममान नहीं थे? उन्होंने तो गीता का अध्ययन नहीं किया, गीता का अध्ययन नहीं किया. गीता का अध्ययन भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है. गीता का अध्ययन आपको और मुझे करना हो. क्यों? एक मिनट
ईश्वर जी, भगवान का अर्थ क्या होता है? गीता का अध्ययन भगवान का अर्थ क्या होता है? मुझे करना है। भगवान का अर्थ क्या होता है? एक परिवार के लिए पति भगवान नहीं होता, उसी प्रकार से भग कल्याणार्थक धातु होती है जिसके 6 अर्थ निकलते भगवान हैं। को दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। भाई परिवार के लिए वो भगवान है, भगवान कृष्ण ने पूरे संसार के लिए कल्याण का काम किया, वो संसार के भगवान है। इसी प्रकार से आप देखिए, कोई कुल भगवान होते हैं, कोई गांव के भगवान का मतलब ये है कि आप संसार के अच्छे काम करने लगो, आप भगवान बन जाओगे। ईश्वर भगवान नहीं हो सकता, दोनों के बहुत बड़े अंतर है। मैं इसको व्याकरणिक अर्थ से निकाल सकता हूँ। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण का परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है, वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर है तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? है। आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कभी समय लेकर हमारे पास आइएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरा एक ही प्रश्न और है, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर है तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं, भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं, वो भगवान की इच्छा है, वो कुछ भी करे। हम तो उनको चुनौती दे रहे हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो भगवान और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर निराकार है तो उसका आकार हो ही नहीं सकता। वेद खुद कहता है ईशावास्मितम सर्वम यत् किंच जगत्याम तेन बुद्धिता। ईश्वर और गीता खुद कहती है, भीष्म पितामह खुद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम। जगत का मतलब ये है कि जो भी आप खुद देख रहे हैं, चेत हो, अचेत हो, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, इट्स ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉ। हाँ, तो वो परमात्मा सुप्रीम पावर है, और जो भी उसके भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के प्रति जाने के लिए आग्रह मात्र किया है। बुरा मत मानेगा, आप जो सिद्धांत बोल रहे हो, दर्शन बोल रहे हैं, उसको मायावाद कहते हैं। वो तो और हमारे शास्त्रों में मायावादी भाष्य सुने हुए सर्वनाश, दर्शन करा दे उसी को दर्शन कहते हैं। भगवद गीता में 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, क्लेशो चेतसा, जो निर्विषय निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाता है, ऐसा मार्ग बड़ा कठिनाइयों से बीतता है। क्या गीता से पहले जीवन नहीं था? गीता से पहले जीवन था जो भगवान के द्वारा निर्देशित था। तो अगर हम वो तो वेदों में निर्देशित था, हम गीता की इसलिए भगवान बोल रहे हैं गीता में वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित् एव चाहम्। वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों के द्वारा मुझे जानना है, वेदांत मैं हूँ। ईश्वर का न कभी जन्म होता है, न कभी वो मरता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए भगवान गीता के 4वें अध्याय में कह रहे हैं, कारण से वो ईश्वर नहीं हो सकते, महान पुरुष हो जन्म सकते हैं। कर्मचने दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। तो भगवान कृष्ण जी का तो जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। सूर्य देव प्रकट होते हैं, सूर्य देव अप्रकट होते हैं। सूर्य देव का जन्म होता देखा है, सूर्य अनादिकाल से है। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण भी अनादिकाल से। मेरा एक ही मानना है कि ईश्वर से बड़ी ना किसी भगवान की सत्ता है, न कोई जो जन्म लिया है वो मरेगा, ये सार्वभौम सत्य है। इस कारण से भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया, वो भी महान पुरुष हुए, ईश्वर नहीं थे। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बहुत सी उपदेश दिए। बाबा तुलसी ले लो, वाल्मीकि ले लो, व्यास जी ले लो, इसी प्रकार से वो भी थे। अगर मुझे निराकार मानेंगे, निराकार का कोई आकार नहीं हो सकता, ईश्वर ही निराकार है, बाकी सब उसके भक्त हैं। ऐसे संसार में कौन सी व्यक्ति है जो निराकार से निकली हो, बताइए। क्या चीज? ऐसी कौन सी वस्तु है जो निराकार से निकली हो, जिसकी उत्पत्ति निराकार से हुई, बताइए बताइए। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश से सूर्य निकला है, या सूर्य देव से सूर्य जो है, सूर्य ग्रह से सूर्य का प्रकाश निकलता है? आप केन उपनिषद पढ़ेंगे, लाइट बल्ब से आ रही है, लाइट से बल्ब निकल रहा है। पहले लाइट आई है ना, पहले लाइट, 1 मिनट पहले लाइट आई है। यहाँ प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभि जानाति लोको माम अभत अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं योग माया के द्वारा ढक देता हूँ अपने आप को, और जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे नहीं समझ पाते। समझ नहीं पाते। वो एक्चुअली क्या होता है कि प्रभु जी कहाँ के? इसको लुधियाना। आपका आंसर मिल गया आपको? हाँ, मैं ये वीडियो देख चुका हूँ। जाकिर नाइक क्या हुआ था कि मैंने पहले जाकिर नाइक का वीडियो बहुत दिन आगे देखा था, एंड फिर एक दिन फेसबुक स्क्रॉल करते करते ये वाला वीडियो एक्चुअली देखा, तो वो संस्कृत श्लोक में रिलेट कर पाया, एंड फिर से मैंने सर्च किया। तो वो तो एविडेंस देते हैं
ये यहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिखा है, बट उसका जो अर्थ है वो मैनिपुलेट करके बोलते हैं। हम तो संस्कृत अर्थ समझते नहीं है, Correct. हाँ कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दिए, तो ये एक्चुअली ऑथराइज्ड जो गुरु है तो उनसे ही सुनना है। करेक्ट, हाँ, ये उस एक है। लोगों को सुने थे तो भक्ति यादव एक्चुअली वो एक्चुअली एक एजेंडा पाल के रखा है, वो तो देख के ही लगता है कि वो हर चीज को तोड़ मोड़ के बनाने की कोशिश करता है, तो वो भी तो मिलेगा वैसा ही। वो है। और आप ये भी पॉइंट ऑब्जर्व करो, मैं आपको प्रूफ दिखा दिया है। प्रभु तो मेरा मानना है, मैं मेरा सोचता मानना हूँ है, मेरा आपने ये- पहले ही ये बोला। बहुत चीज़ है, उसी को ये चीज लोग नोटिस नहीं करते। हाँ। ये चीज नोटिस करना चाहिए कि कहाँ से बोल रहा है। अब सेम आर्गुमेंट में प्रभु ने अभी तक 5-6 श्लोक बोल दिए शास्त्रों से रेफरेंस ले लेके, बट ही इज जस्ट सेइंग मेरा मानना है, ऐसे मैं समझता हूँ, ऑल दोस थिंग्स। हाँ, तो ये एक पॉइंट है। और इसके अलावा शंकराचार्य जी जो है, सो शंकराचार्य जी ही इज अवतार ऑफ शिव जी, एंड भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाके मायावाद का प्रचार करो। भगवान ने खुद ने ये इंस्ट्रक्शन शंकराचार्य जी कि आप जाके मायावाद का प्रचार करो। ओके, दिस वाज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। आई विल टेल यू द स्टोरी व्हाई ही गिव दिस थिंग सम टाइम लेटर। ओके, बट देन शंकराचार्य ने सब पूरे भारत में सब जगह पे किया, और जो 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऑल दिस थिंग, if God is impersonal, then why he has made a form of God over there? भगवान की मूर्ति का स्थापना क्यों किया वहां पर जाके? उन्होंने प्रचार किया कि भगवान निराकार है, उन्होंने स्थापना किया है। ओके, और जो अब गीता है, गीता महात्म्य देखो वहां पर, हाँ थोड़ा गीता दीजिए। तो गीता में जो गीता महात्म्य है, शंकराचार्य जी ने लिखा है। गीता का जो महात्म्य है, शंकराचार्य जी ने खुद ने लिखा है। कितने पेज में? दिस इज पेज नंबर 29, यहाँ पे है। 29, सॉरी पेज नंबर 30, इसके पहले जो आता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए शंकराचार्य जी गीता, आप वरुणगिरी प्रभु आप सुन रहे राइट? सुपर ज्योति प्रभु, यू आर देयर विद मी राइट? तो शंकराचार्य जी यहाँ पर खुद यहाँ पर बोले, देखिए, एकम शास्त्र देव गीतम, एक देव देव की पुत्र एव, एक मंत्र तस्य नमानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवम। देखा, शंकराचार्य जी खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? In this present day, people are very much eager to have one scripture, one God, one religion, and one occupation. Therefore, ekam shastra devaki putra Geetam. Let there be only one scripture, one common scripture throughout the world, Bhagavad Gita. देवकी पुत्र गीता मतलब क्या? कौन है देवकी पुत्र? कौन है? कृष्णा है। कृष्णा है। तो देखिए उन्होंने यहाँ पे बोला एक देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान है, वो भी देवकी पुत्र। कौन है? कृष्णा। शंकराचार्य जी ने प्रूव किया, जो मायावाद का प्रचार किया है, मायावाद के जो गुरु है। फिर वहां पर एक को मंत्र से न माने, एक ही मंत्र होना चाहिए, और मंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, चैंटिंग द प्रेयर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और उसके बाद क्या है? कर्मा एक देवस्य सेवम, एक ही सेवा है, और वो क्या है? भगवान कृष्ण भगवान की सेवा करना। और क्या चाहिए? तो आपको गीता स्टार्ट होने के पहले गीता का महत्व दिया गया है शंकराचार्य जी ने, ठीक है? तो दिस कंप्लीटली डिफीट्स मायावाद फिलोसॉफी, ये चीज है। और जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, जब प्रभुपाद जी ने उनको भेजा था इंडिया में, तो उन्होंने बोला कि आप अलग अलग जगह पे जाके इस्कॉन के लिए रिलेशनशिप्स डेवलप कीजिए। तो पुरी में आए थे, एंड पुरी टेम्पल इज ऑल्सो अंडर माया शंकराचार्य जी के अंदर ही आता है, पर भगवान का विग्रह तो है ना जगन्नाथ जी का। देन तो वहां पर गए, तो शंकराचार्य जी एक उस टाइम शंकराचार्य थे वहां पर, तो वो उनके रूम में गए, ही वाज वेरी ओल्ड, और रूम में गए तो रूम में देखा कि जयप्रकाश गुरु महाराज क्लास में हुए थे कि इन दैट रूम कृष्ण भगवान और राधा रानी का एक ये था, फोटो नहीं, मूर्ति था वहां पर। तो शंकराचार्य जो मायावाद का प्रचार करते हैं, उनके रूम में क्यों भगवान का पर्सनल फॉर्म का मूर्ति का विग्रह है बताइए? बिकॉज इट इज वेरी ड्राई। अब कर करके इट इज वेरी स्ट्रिक्ट टू बिकम, जो विवेकानंद जी ने जो बोला है, एंड रामकृष्ण मिशन विच फॉलो दैट, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट टू फॉलो दैट। उसमें रस्सी नहीं है, आपको बोला जाता है कि आपके जो भी डिजायर है उसको जीरो कर दो। Not at all possible. You cannot do that. और जो करता भी है, very few people are able to do that. They go only till ब्रह्म ज्योति। सब कुछ जीरो लेवल पे गए। मैं बोला था ना, नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, आप जीरो तक आ गए, बट आप वहां पर आपको शांति मिलेगी। बस कितने दिन शांत रहोगे? इच्छा तो मन में है ना, मुझे ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है, and again you come back down. You don't go back up because you have followed that there is no God. God निराकार है।
तो यहाँ पर चैतन्य ने वही बोला है, आपको डांस करना है तो आइए भगवान के लिए डांस कीजिए। जगन्नाथ जी आया है, ईटिंग गॉड, पेट भरे खाओ, प्रसाद खाओ, डांस करो, डांसिंग और चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार आपके हर एक चीज के साथ कनेक्ट करेंगे, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, सो ऑलरेडी आई एम 15 minutes late, so I conclude over here. Anybody else has any question? Subhajyoti Guru, Varun Prabhu, you can personally ask me. Okay, ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग टाइम पे आइएगा प्लीज, दिस सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे मिस मत करो। कुछ नोट्स लिखते रहिए सेशन का, तभी आप तो भूल जाएंगे सर, टॉपिक्स फिर से रिपीट नहीं होगा। हाँ, ओके, हरे कृष्णा।